Good morning, class 9 students. Yesterday I was busy in some kind of work at home, so I was unable to take your class. In previous class, we discussed about France becomes a constitution monarchy, and I also explain the picture of constitution monarchy, that is judiciary, executive, legislature, and we learn how uh, king is become so less powerful because king was controlled by legislator, which is national assembly, and there are 745 members, and members are elected by voters and active citizens. Also national assembly control ministers, okay, and the active citizens also vote for judiciary, that is judge. So there is a participation of peoples uh, in the constitution of France and the system of newly administrated France. Before 1789 or 1791, these active bodies were not present there. The absolute power was in hands of kings, but now we saw that uh, in the history of France, the power is separated by three bodies, that is judiciary, executive, and legislature, and controlled by peoples. Okay. Later, yes, the Constitution of 1791. What is Constitution 1791? That is I earlier explained by figure. Let's read it. The Constitution of 1791 vested the power to make law in the National Assembly. उसने उसके हाथ में पावर थी कि वो लॉ बनाए नेशनल असेंबली में, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही होता था, क्योंकि उसमें जो मेंबर्स होते थे उसमें सारी जो थर्ड एस्टेट्स के लोग थे उनको शामिल किया गया था. दैट इज सिटीजन्स voted for a group of electors who in turn to choose the assembly. ये सिटीजन ही थे जो वोट करते थे ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को, और वो लोग फिर असेंबली को चूज़ करते थे, वो लोग असेंबली बनाते थे. Not all citizens, however, had the right to vote. The main thing you have to notice that all peoples don't have right to vote. Only men above 25 years of age who pay taxes. First of all, men who is above 25 years old and only who paid taxes equal to at least 3 days of labor wages were given the status of active citizens. In the France at the time, in the Constitution 1791, only active citizens, and who are active citizens, who paid taxes equal to least of 3 days labor wages. 3 दिन जो मजदूरी के बराबर जो टैक्स है आपको मिलता है, उसके बराबर आप टैक्स पे करते हैं, तो उन्हीं लोगों को, सिर्फ मेंस को वोट देने का राइट दिया गया, उन्हें स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स के लिए राइट दिया गया. दैट इज़ दे वर एंटाइटल टू वोट, और उन्हीं को वोट के लिए रखा गया. द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन्स आर क्लास एज पैसिव सिटीजन्स, उनको एक दूसरी कैटेगरी के उसमें रखा गया. To qualify an elector and then a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. और अगर उसको असेंबली का मेंबर होना है, इलेक्टर मतलब मेंबर होना है, तो उसको हाईएस्ट टैक्स पेयर की कैटेगरी में आना होगा. ही हैव टू बी हाईएस्ट टैक्स पेयर, सो बी रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ member of the assembly. So now we discuss about the main topic and the very interesting topic, that is the declaration of man and citizens, and this is a French language, and this is figure 8, the declaration of rights of man and citizen, painted by artist Lee Barbier in 1790. The figure of the right represent France and figure of the left symbolize the law. Here is a representation of first, which is bound of
chain, and second one is like an angel. He had a stick, and sometimes prism, which is enlightened, and there are declarations. Okay, so what are their meanings? We also learn this a hat. There is a kind of some tool or this rope, and in their hand there is an ये कुछ हथकड़ी टाइप का है, आई थिंक ये उस तरह की चीज़ें हैं. तो मेन चीज़ ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन्स के थे क्या. मतलब फ्रांस में फर्स्ट टाइम इन फ्रांस देयर इज़ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, अधिकारों की बात हुई है, जो कि वहाँ पे राइट्स थे ही नहीं अब तक. तो वो क्या क्या थी. फर्स्ट था मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स. सिर्फ मैन को यूज़ किया है, फीमेल को यहाँ पे कैटेगराइज नहीं किया है कि मैन जो है जो पैदा है और जो वो फ्री है, इक्वल राइट्स हैं उसको. ठीक, मतलब वुमेन्स को इसमें भी ऐड नहीं किया शुरुआत में. द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इनएबिलिटेड राइट्स ऑफ मैन. दीज आर लिबर्टी, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्ट टू ऑपरेशन. तो मतलब ये पॉलिटिकल एसोसिएशन को रखा गया इस चीज़ में कि एक राइट्स क्या होंगे मैन को, कि वो लिबर्टी, आज़ादी होगी, प्रॉपर्टी होगी, सिक्योरिटी भी होगी, और रेसिस्टेंस मतलब विरोध करने का उसको अधिकार भी होगा. द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन. सोवरेनिटी वर्ड कई बार आया है. द सोवरेनिटी मीन्स द एक्चुअल पावर इज ऑफ अ कंट्री इन विद इट्स हैंड, इज़ विद इन हैंड्स. मतलब हमारे ऊपर कोई दूसरा कंट्रोल करने वाला कंट्री ना हो, हम में ही सारी पावर हो. तो वो सोवरेनिटी वाली जो चीज़ थी वो नेशन के उसमें रखी कि नेशन के में ही सारे लोग सोवरेन हैं और फ्रांस को ऊपर से कंट्रोल करने वाला कोई अदर नहीं है. नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल. और ऐसी कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि लोगों के बाहर आके इस कंट्री पे अपना रोल इस्टेब्लिश करे. वो यहाँ अब वो नेशन थ्योरी आ चुकी है ना कि हाँ नेशन बिल्डअप हुआ है. अब जो कुछ भी है वो सिर्फ और नेशन के नाम पे है. फोर्थ है लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ पावर टू डू वट एवर इट नॉट इंजस्ट टू अदर्स. आज़ादी मतलब लिबर्टी होगी आपको, और वो पावर ऐसी होगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ ना करें जो दूसरों के लिए गलत हो, इंजूरियस हो, मतलब दूसरों के लिए ख़तरनाक हो या गलत साबित हो. तो इस तरह की आज़ादी की बात की गई वहाँ पे. ओके, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी. और लॉ मतलब इस तरह से अधिकार दिए जाएंगे लोगों को, उन चीज़ों को मना किया जाएगा जो सोसाइटी को किसी तरह से हार्म करें. उन सारी चीज़ों पे एक्शन करना भी उनका काम होगा, और इस तरह के राइट्स को भी उन्होंने रखा. लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल. कानून जो है सबके लिए नॉर्मल होगा. ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन. सभी लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं. पर्सनली और गो थ्रू रिप्रेजेंटेटिव. ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट. लॉ के आगे सभी लोग इक्वल कहे गए. इक्वलिटी बिफोर लॉ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने देखा है, तो वो चीज़ फ्रांस में उस टाइम वहाँ पे वो लोग डिक्लेयर कर चुके थे. नो मैन हैज़ बी मे बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इट्स केस डिटरमाइंड बाय द लॉ. किसी भी पर्सन को, मैन को आप एक्यूज दोषी नहीं ठहरा सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं रख सकते, जबकि उस पर जो लॉ, जो कानून है, उसने केस डिटरमाइन ना किया हो. एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली. वो आज़ादी पूर्वक बोल सकता है, लिख सकता है, और पेंट या प्रिंट जो भी छाप सकता है अखबार वो. ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ. और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये होगी सिटीजन्स की कि लॉ के अकॉर्डिंग जो इस तरह की लिबर्टी दी है उनको अब्यूज़ ना करे, उनको उस चीज़ से ऐसे ना हो कि वो उस चीज़ का, आज़ादी का, राइट्स का गलत यूज़ कर सके. For the maintenance of the public force and for the expense of administration or common tax is indispensable, it must be access equally on all citizens support of their means. अब ये अदर चीज़ें हैं ये टैक्स के बारे में, जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमन टैक्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो चले, मतलब जो शासन में लोग हैं, अधिकारी हैं, इस तरह के लोगों के खर्चे जो हैं वो कॉमन टैक्स से ही लिए जाएंगे. और इक्वली प्रपोर्शन में, मतलब जैसे 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 जिसको वोट देने का राइट है तो वो
पहले ही बताया था कि 3 वेजेस के बराबर उसका जो टैक्स पे हो जाएगा तो उसको उसी मीन में एक्टिव सिटीज़न माना जाएगा, तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये शुरुआत में इस तरह के वहाँ बदलाव थे, हालांकि इसमें वुमेन को शामिल नहीं किया गया, बट फिर भी शुरुआती तौर में जो वहाँ बदलाव थे वो काफ़ी अलग टाइप के थे, और वहाँ फ्रांस में लोग इस चीज़ को मान भी रहे थे। एंड देर आर मैनी, सो 17 टाइप, ये मेन लिखे गए हैं। 7 के बाद 11, 12, 17 ये प्रॉपर्टी को लेके बोला गया है, और क्योंकि ये कहा गया था कि प्रॉपर्टी जो है वुमेंस के अधिकार में नहीं होगी, वुमेंस को पढ़ने का राइट नहीं होगा, वोट का राइट नहीं होगा, इस तरह की बातें अब तक फ्रांस में थी। ये एक पर्सन है, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इनका नाम है द रेवोल्यूशन जनरल जीन पॉल मैरी। इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर है द फ्रेंड ऑफ द पीपल, लैमी डू पीपल, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो ये उनका नेम है। वो मतलब लोगों को बता रहे हैं, जैसे रूसो, जॉन लॉकी और ये सारे लोग थे, मोंटेस्क्यू, उन्हीं की तरह ये सोर्स के तरीके से दिखाया आपको। तो उसमें लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसमें वुमेन वर्ड यूज़ नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन जो बिगिन होता है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स से होता है, जो कि अभी आपने यहाँ पढ़े, such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights। मतलब इतनी सारे rights को, right to life, freedom of speech, opinion, equality before law, इनको natural मतलब सबको मिलेगा राइट, इस तरह से उसमें अधिकार दिया गया। दैट इज़ बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, कि वो जन्म से ही यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का एक हिस्सा है फ्रांस में। एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और आपको ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, ये ड्यूटी दी गई स्टेट को यानी सरकार को कि वो हर एक नागरिक के नेचुरल राइट्स का प्रोटेक्ट करे। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उन पे प्रोटेक्शन देता है। ओके, ये पॉलिटिकल सिंबल हैं जो मैं आपको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की, जब मैं आपको ये फिगर दिखा रहा था ये वाली, तो इसमें कई सारे हैं, जैसे कि ये एक अलग है, ये टोपी है, ये कोई रस्सी टाइप है ना, ये एक वो जंजीर है, ये हथकड़ी है, उसके हाथ में एक वो स्टिक है, और ये एक तरह से एंजल की तरह दिखाया है, एक प्रिज्म है। इन सब ये डिक्लेरेशन में इन सारी चीज़ों को ऐड किया है, तो उनके मीनिंग क्या थे वो आप ज़रा समझें, ज़रा देखिए। लेट अस ट्राई टू रीड दिस सिंबल। जैसे ये टूटी हुई हथकड़ी है जो उसके हाथ में थी, तो इसका मतलब ये द ब्रोकन चेन है। चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स, ए ब्रोक चेन स्टैंड फॉर एक्ट ऑफ बिकम फ्री। टूटी हुई चेन का मतलब है कि अब स्लेव की तरह एज अ स्लेव अब आप नहीं है फ्रांस में, अब आप फ्री इंडिपेंडेंट नेशन में एज अ एक्टिव सिटीजन्स की तरह हैं और आप फ्री हैं। ब्रोकन चेन से ये मतलब था। ये बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस जो आपको दिखाया था उसमें, और ये फ्रांस का ये जो फ्लैग है इसको इस पे लपेट के दिखाया है। वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइन इन यूनिटी। मतलब बंडल ऑफ रॉड्स को दिखाया है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, मतलब सभी लोग बंधे हुए हैं, और फ्रांस का झंडा उससे लपेट के दिखाया है कि हाँ यूनाइट जो है फ्रांस का वो दिखाया जा रहा है। ये प्रिज्म जो आपने देखा था उसमें आई है, और ये आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, एक आँख है जो ट्रायंगल में है और वो लाइट दे रहा है, वो देख रहा था। उसका मतलब क्या है? द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, के ज्ञान के लिए सबकी आंखों को दिखाया है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे फ्रॉम क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और जो सन की किरणें हैं वो बादलों से छटती हुई उनको इग्नोर को, मतलब बादल मतलब हर्डल्स को ना दिखाती हुई अब सीधा स्टैंड है कि आप सब नॉलेज रखें और आपको ये राइट है और सबको बराबरी देखने का हक है। डिक्लेरेशन राइट्स इस तरह सबको देखता है। ये स्केप्टर है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, जो उनके हाथों में है, जो शाही पावर है उसको दिखाया है कि उसको हाथों में ले लिया गया, यानी कंट्रोलेबल किया गया है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सांप अपनी ही टेल खा रहा है, एक रिंग बनाया है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, ए रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। एटर्निटी मतलब
किसी चीज़ का किसी चीज़ में आत्मीयता से मिलन हो जाना, कि ना तो इसकी शुरुआत है ना बिगनिंग है, यानी कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, यानी कि यहाँ से अब ये जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, ये सारी चीज़ें जो अब लोगों को मिली हैं, ये अब कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये रेड कैप है, कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकम फ्री, कि ये उस टाइम गुलाम लोग पहनते थे, अब वो फ्री हैं। ये इस तरह से उस ये नाम है उसका, रेगियन कैप। ये है ब्लू वाइट रेड दिखाया है, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। ये ब्लू, ये रेड, इस तरह से उसको फ्रांस के कलर्स में दिखाया है। द विंग्ड वुमेन, उड़ती हुई वुमेन को इस तरह से दिखाया है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को पर्सोनिफिकेशन किया है, मतलब कानून को एक देवी के रूप में दिखाया है। जैसे आप भी देखते हैं अदालतों में एक तराजू लिए खड़ी होती है, उसकी आंखों पट्टी होती है, तो पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन की तरह दिखाया है कि लॉ सबके लिए है और लॉ के आगे सब बराबर है। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के ऊपर इनको बैठाया है, ये कह के कि सबसे ऊपर लॉ है, उसके नीचे सारी चीज़ें हैं। और ये तो लॉ टेबल है ही। टैबलेट, द लॉ इज़ सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, सबके लिए बराबर है ये लॉ, और ये भी सबको बराबर मानता है और लोग भी इसको अपने लिए सेम समझें। तो बेसिकली ये चैप्टर 1 था, जिसमें कि शुरुआत थी मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आएगा वो आएगा कि वो रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक वर्ड बिल्कुल नया होगा, क्योंकि रिपब्लिक वर्ड का मतलब हम लेटर ऑन समझेंगे। इंडिया भी एक रिपब्लिक कंट्री है, और आप देखेंगे फ्रांस ने मोनार्की को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। अब वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री बनने जा रहा है। तो ये लेटर ऑन हम कल की क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, और बहुत धीरे धीरे से रिवीजन चल रहा है, चैप्टर्स को भी बहुत धीरे धीरे हम करवा रहे हैं। तो आप कोई भी चीज़ छोड़े नहीं, काइंडली कवर योर ऑल क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर्स इन नोटबुक। देर आर वेरी शॉर्ट ऑफ क्लास, क्लास बहुत छोटी होती हैं आपकी, शॉर्ट लेक्चर होते हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझें। और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो काइंडली आप मुझसे पूछें, काइंडली आस्क योर क्वेश्चंस by messaging me or calling. But if you have a question query, then message me, don't call. If you had another kind of query, then call me, and call me after 1 p.m. Okay, or message me. Thank you class, have a nice day.